Hello everyone, this is Tanu Kesharwani. So basically today I'm going to talk about the Rayleigh's law in terms of classical theory of black body radiation. So the classical theory of black body radiation was firstly given by the physicist Rayleigh and Jeans. That is why it is known as the Rayleigh-Jeans law. Okay, now first of all we can see this graph, which was based on the experimental observation done by the scientist in the past on the black body, which was the black body radiation experiment. So uske through the intensity of the black body versus frequency का ग्राफ प्लॉट हुआ based on the experimental observation. So ये ग्राफ बेसिकली ऐसा था, just totally based on the experimental observation done by the scientist. Now question ये arise होता है कि how to explain this experimental observation using classical physics. जो उस टाइम पे अवेलेबल फिज़िक्स थी, उस क्लासिकल फिज़िक्स का यूज़ करके किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम सेटिस्फाई करें, theoretically and the mathematically also. So Rayleigh and Jeans were the scientists who firstly tried to explain this experimental result using classical physics available at that time. So Rayleigh and Jeans लॉ जो था उनका एक्सप्रेशन वो ये है. सो फर्स्टली इसके टर्म्स को हम समझेंगे वन बाय वन. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लैक बॉडी in the region in a too small region of frequency d nu as the function of temperature and the frequency, so is equal to 8 pi Boltzmann constant temperature divided by cube of velocity of light into square of the frequency and in the d nu region. It's a very too small region of the frequency. So these were the terms. Rayleigh-Jeans expression derived by the class using classical physics. ये expression इसका एक lengthy सा derivation आता है, और the complete derivation was based using the classical physics, using classical kinetic physics or electromagnetic theory to calculate the number of waves, and that comes under the derivation, where we are not going to talk about the derivation here. So basically ये जो expression आया था वो classical physics को use करके आया था. Now हम इस expression के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है. देन हम कंपेयर करेंगे कि क्या फेलियर थी, क्या चीज़ें थी, उस चीज़ को एनालिसिस करेंगे. सो जो फिर से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये तो सेम ग्राफ है जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. नाउ वी विल सी द Rayleigh-Jeans लॉ, which is the intensity is just proportional to the frequency square of the frequency. Okay, these are the constant. अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या है, constant है, ठीक है. for a particular temperature भी constant हो जाएगा. then the intensity of the black body would be proportional to the square of the frequency. so अगर आपको common mathematics आती है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी, ठीक है. और ग्राफ भी जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हाइपरबोला सा आएगा, ठीक है. ये क्या है, Rayleigh-Jeans लॉ है. अब इसको ध्यान से देखो. ये जो Rayleigh-Jeans लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये सेटिस्फाई कर रहा है किसके लिए, फॉर द लोअर फ्रिक्वेंसीज.
ठीक है, फॉर द रीज़न ऑफ द लोअर फ्रिक्वेंसीज, बट एट हायर फ्रिक्वेंसीज इट गोज इन्फिनिटी। ओके, ये इन्फिनिटी मतलब एकदम हाइपर बोला है ना, और इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, रेले जीन्स लॉ मैचेस फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैचेस विथ थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए मैच कर रही हैं, बट एट हायर फ्रिक्वेंसीज इट डज नॉट मैचेस। ठीक है, ये मैच नहीं कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं द थ्योरेटिकल explanation or prediction of classical physics did not match with the experimental results of the black body radiation phenomena. So okay, now we will talk about the what is the ultraviolet catastrophe, right? So basically, but with हुआ क्या, विथ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी इमीडिएटली डाइवर्जेस एंड गोज टू इन्फिनिटी। ओके, सो इन द प्रीवियस स्लाइड आई कैन से सो कि जो ये डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है, जो डाइवर्जेंस यहाँ से आ रहा है ना फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज वी कैन से इट डाइवर्जेस, ठीक है, एंड गोज टू इन्फिनिटी। इसी चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, ये क्यों डाइवर्जेंस शो कर रहा है फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज। तो ये जैसे जैसे हम हायर फ्रिक्वेंसीज में जाते हैं हमें कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इमीडिएटली एंड गोज टू इन्फिनिटी विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि जो इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, जो ये इन्फिनिटी जा रहा है, क्या इंटेंसिटी विथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी क्या जा रही है हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए, इन्फिनिटी जा रही है। ये चीज़ आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, फाइनाइट एनर्जी एमिट करता है, इन्फिनाइट नहीं करता। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो भी एनर्जी एमिट होगी, एब्सॉर्ब होगी, वो फाइनाइट होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट इन्फिनाइट। दैट इज़ वाई it was not practically possible at that time and even now also. So the classical physics could not explain why is it going to infinity. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहानी यहाँ तक थी कि ये चीज़ें हुई, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, रेले एंड जीन्स ने और बहुत सारे फिजिकिस्ट ने बाद में इसे रिप्रोड्यूस भी किया था, बट देयर वाज नो एनी मिस्टेक डन बाय द physicist Rayleigh and Jeans. They all the scientists were giving the same equation as they had given at that time. So basically mistake नहीं थी equation में, the equation was perfect according to the physics available at that time, classical physics. तो classical physics could not explain why is it going to infinity for, तो वाई इज़ इट गोइंग टू इन्फिनिटी, ये एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। अगेन लिसन केयरफुली, फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज एनर्जी और इंटेंसिटी बिकम्स इन्फिनाइट नोन एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। सी, जब हम हायर फ्रीक्वेंसीज की साइड जाते हैं, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसीज मतलब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट रीजन में डिवाइड होती है ना। जैसे पहला आता है तुम्हारा रेडियो वेव्स, ठीक है, देन आता है माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन यूवी। तो कहीं ना कहीं विजिबल रीजन से जब हम यूवी की साइड जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है।
ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, जब हम विजिबल से यूवी जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो और हम देख रहे हैं जब यूवी विजिबल से यूवी आ रहा है तो यूवी रीजन में ही हमें ये डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बोलते हैं कि ये इंक्रीज़ करता है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी तक, देन ये डिक्रीज़ करता है, अगेन कम्स टू द ज़ीरो, बिकॉज एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी और इंटेंसिटी एमिटेड और रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज़ फाइनाइट, ओके। सो ये क्यों हम इसे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फिनोमेना है और यू कैन से सिनेरियो हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखने को मिलता है, as the frequency enters in the ultraviolet region. So in conclusion we can say, so ultraviolet catastrophe is the incorrect prediction of classical Rayleigh-Jeans theory that the intensity of black body radiation becomes infinite at high UV frequencies, okay। मतलब ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं जो भी इक्वेशन दी गई थी रेलेजेंस के अकॉर्डिंग, वो एक इनकरेक्ट प्रेडिक्शन थी, क्योंकि वो किसकी बात कर रही है, यूवी कैटास्ट्रॉफी, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फिनोमेना है, राइट। नाउ फॉर व्हाट इट इज़ करेक्ट, फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी ओनली. It does not matches with the experimental observation, okay, of the black body radiation. So यही चीज़ें थी. अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ क्या है, मैं फिर से इन शॉर्ट आपका रिवीजन करा दूँ. ये एक इनकरेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ क्लासिकल रेले-जीन्स थ्योरी है, जो कि ये बोलती है इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन बिकम्स इन्फिनाइट एट हाई यूवी फ्रिक्वेंसीज, ठीक है. फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ना प्लैंक हाइपोथेसिस, जिन्होंने एक दूसरी इक्वेशन दी थी जो कि सेटिस्फाई करती है इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को. दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द क्वांटम केमिस्ट्री. सो दिस वाज द फेलियर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स. हियर वी गो आफ्टर this point, we go with the quantum phenomena or quantum physics. Thank you so much for watching this video.